27 दिसंबर 1797 को आगरा की ज़मीन पर जन्मे मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान फ़ारसी और उर्दू की सरहदों को छूती हुई शायरी की वो लाफानी आवाज़ थे जिनके लफ्ज़ों ने सदियों तक के लिए असर दायर कर दिया। द पेन नेम गालिब that Mirza adopted carries this very sense of triumph and supremacy. Hence, it is often understood as the conqueror. मिर्ज़ा गालिब को ख़ास बनाती है उनकी शायरी में विचारों की गहराई और भावनाओं की जटिलता। उनकी कविता केवल प्रेम की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन, नियति और मनुष्य तथा ईश्वर के संबंध पर भी प्रश्न उठाती हैं। उनके शेर अर्थों की परतों से भरे होते हैं, जो पढ़ने या सुनने के बाद भी मन को सोचने पर विवश करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने फारसी में ज्यादा लिखा और उसे ही अपनी मुख्य साहित्यिक भाषा भी माना, लेकिन फिर भी उनकी उर्दू शायरी ने ही उन्हें पाठकों के दिलों में अमर बना दिया। अपने जीवन काल में उन्हें अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी और वे आर्थिक संघर्षों से भी जूझते रहे, किंतु समय के साथ उनकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से पहचाना गया और आज उनके शेर पीढ़ी दर पीढ़ी गाए और सहेजे जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब remains timeless because his words speak to the inner world of the human soul, its doubts, desires, contradictions, and quiet hopes, making him as relevant today as he was in the 19th century. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं सुरधारा की ओर से अरुणपुरी और मैं मीना माथुर आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू कर्नल विजय यादव, जनरल मैनेजर CSOI, for allowing us to present the special musical evening to this wonderful audience. We welcome Mr. Anand Mathur, retired Director General, Indian Railways, and Administrative Member, Central Administrative Tribunal. He is one of the esteemed members of CSOI Club. We are grateful for his invaluable support in organizing this program and accepting to chair the event today. Thank you, Mr. Anand Mathur ji. अगर आप 2 मिनट के लिए ऊपर आ सकें स्टेज पे, it will be a great pleasure for us, sir. थोड़ा सा हमारे लिए कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए। नमस्कार। ये सुरधारा का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि नॉर्मल जो बॉलीवुड के गाने होते हैं उनसे हट के है। हमने भी ऐसा प्रोग्राम पहले नहीं देखा है एंड इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भी इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम सबको पसंद आए। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now we extend our warm welcome to the ghazal lovers, all of you, जो भी यहाँ पर सब मौजूद हैं. We present a very special musical event to celebrate the eternal king of ghazals, Mirza Ghalib, the name that needs no introduction. Through the ghazals of Jagjit and Chitra Singh, sung by the most passionate singers and soulful singers from Gurugram. Today we have with us one of the very talented singers, ghazal singers actually, Mr. Viplav Mishra. He has worked as a Vice President Technology Operations at Accenture, and after having worked for 27 years, finally decided to call it a quits and took early retirement to spend most of his time pursuing his passion as a musician. He sings and plays multiple musical instruments. He also writes songs and composes music. We feel privileged to have him with us today as our guest on stage. You're welcome, sir. Thank you. And now, Mrs. Meena Mathur. She is a Lady Shri Ram College alumni and is a very passionate singer since her childhood.
She is trained from Shri Ram Bharati Kala Kendra and has given many performances in Delhi and NCR. She is also the co-founder of Surdhara. A very passionate and dedicated singer, Mrs. Mathur leads the team by example with her skillful endeavors. Mr. Arun Puri is an accomplished businessman with over 4 decades of diverse professional experience. Mr. Puri has built an impressive professional journey, yet his heart beats strongest for music. A true enthusiast at heart, he rediscovered his childhood passion for singing during the COVID period. Blessed with a natural voice and instinctive feeling for melody, he continues to explore and share the joy of music wherever he performs. Beside this, he has a creative mind that we see in Surdhara's digitals and graphics too. Thank you very much. And now let me introduce to you our musicians, Mr. Chetan Saxena and Mr. Dilip Chandar. Chetan is a corporate leader and acting as a chief operating officer for US-based IT company for more than 15 years now. His profession could be in corporate, but his heart lies in music. He is a skilled keyboardist and pianist and pursues his passion actively. He established Mystic Band in 2008 to give his music ambitions wings, and it has been a popular name in Delhi stages and have delivered hundreds of successful events in recent past. Dilip Chandar himself is a seasoned percussionist. He has been in the field for more than 30 years. He is an enlisted A-grade tabla player with Akashvani. He has performed in various countries like Switzerland, Canada, UK, Dubai, Thailand, and name as many. With the accomplished artists, he is now an integral part of Mystic Band with Chetan. वैसे तो जगजीत और चित्रा सिंह को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं उनका काम, और उन्होंने जिस तरह की गज़लें बनाई और गाई वो एक अलग लेवल की रही हमेशा. जगजीत and Chitra Singh together redefined the modern ghazal and brought it into Indian living rooms with grace and simplicity. Their music blended classical depth with light orchestration, allowing the poetry to remain in the center. Jagjit's voice was known for its velvet texture, perfect diction, and emotional restraint, while Chitra's singing carried gentleness, clarity, and quiet elegance. Some of their musical albums have been landmarks in Indian music history. They introduced many listeners to great Urdu poets such as Mirza Ghalib, Faiz, and Bashir Badr through their renditions. After the tragic loss of their son, Chitra gradually withdrew from public singing, making their joint renditions even more precious and irreplaceable. Jagjit Singh went on to become the most recognized voice of ghazals in India. The era of Jagjit Chitra together is remembered as a golden chapter of soulful, refined music. और अब हम आज के इस थीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे. जब 1980 के दशक में गुलजार साहब ने दूरदर्शन के लिए मिर्ज़ा गालिब धारावाहिक बनाने का सोचा तो उनका उद्देश्य था गालिब की शायरी को पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ पेश करना. इसके लिए उन्होंने जगजीत सिंह को संगीत रचना और गायन की जिम्मेदारी सौंपी. जगजीत सिंह ने इस काम को न केवल एक प्रोजेक्ट बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह लिया. उन्होंने गालिब के जीवन पर और उनकी सोच को गहराई से समझा. इस धारावाहिक के गीतों में बहुत कम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ और बहुत हल्की ताल का उपयोग हुआ था. इसलिए आज आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा बैंड नहीं है. वी ओनली हैव द कीबोर्डिस्ट एंड द परक्यूशनिस्ट विद अस. इससे श्रोता का ध्यान संगीत की से ज़्यादा शायरी पर जाता है. जगजीत और चित्रा सिंह की आवाज़ में एक ठहराव और शांति थी जो गालिब की गहरी और सोचने वाली शायरी से पूरी तरह मेल खाती थी. ये गज़लें फिल्मी अंदाज की नहीं थीं
बल्कि आत्मा से बात करने वाली लगती थी। जब 1988 में यह धारावाहिक प्रसारित हुआ तो इसके गीत बहुत लोकप्रिय हो गए। बहुत से लोगों ने पहली बार गालिब को इसी माध्यम से जाना, इंक्लूडिंग मी। जगजीत सिंह के संगीत ने गालिब की शायरी को किताबों से निकालकर आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। Thank you for being patient. Now we are going to begin with our. पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवाह, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है, हमारी जेब को अब
जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा कुरीदते हो जो रात जुस्तजू क्या है कुरीदते हो जो रात जुस्तजू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि यार सो क्या है तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है अच्छा, आप सब ने गालिब साहब के बहुत से ऐसे शेर सुने होंगे जो बहुत ही कॉमन रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा, मुझे पता है कि आप सब लोग उसके साथ उसको पूरा करेंगे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। ऐसा ही एक और बड़ा पॉपुलर शेर, इश्क पर जोर नहीं है कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। इसी तरह का एक और भी बहुत ही कॉमन पॉपुलर शेर, वो आए घर हमारे। यस। और एक जो सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर उनका शेर जो हर जन्मदिन पर गाया जाता है ना, आप सब लोगों को याद होगा, तुम सलामत रहो हजारों साल, हर बरस के हों दिन 50,000। राइट? तो ऐसे हल्के शेर भी थे, लेकिन अब आगे जो आप सुनेंगे वो थोड़े से भारी भरकम होने वाले हैं। बट आई एम श्योर आप लोग समझ सकेंगे कि गालिब का दर्जा अलग कैसे था और क्यों था। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ।
थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाए ख्याल कहाँ, अब वो रानाए ख्याल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ। फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ो माहो साल कहाँ। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई।
गालिब तो अहले जहां देखना इन बस्तियों को तुम के वीरान हो गई। एक उनका बहुत ही खूबसूरत शेर है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है। एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। धागे फिरा के सोहबते शब की जली हुई, दागे फिरा के सोहबत शब की जली हुई। एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है। एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। जुल्मत कदे में मेरे बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ
क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं भी मुँह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नाता तुझे हुआ क्या है, दिल नाता तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नाता तुझे हुआ क्या है। हम भी मुश्ताक और वो बेसार, हम भी मुश्ताक और वो बेसार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नाता तुझे हुआ क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। दिल नाता तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ,
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देख ये पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये सा अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये सा अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक।
हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक असर होने तक। गमे हस्ती का असर किससे हो, जुज़ मर्ग इलाज। गमे हस्ती का असर किससे हो, जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दिल ही तो है न संगो ख्वेश, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश, दर्द से भर न आए क्यों। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी हमसे निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश,
दर्द से भरना आए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्ता नहीं। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्ता नहीं। बैठे हैं रह गुजर पे हम, पैर हमें उठाए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोई ये जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना। तेरे वादे पर जिए हम,
इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या तेरा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सालों मीना मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है।
कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी एक दिन फाका मस्ती हमारी। फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना ज़ोयाए ज़ख्म कारी है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊँ जहानी खराब है, कब से हूँ क्या बताऊँ जहानी खराब है। शब हाय हिजर को भी रखूं कर हिसाब में। मुझ तक कब की बस आता था दौर जान, मुझ तक कब की बस आता था दौर जान। साथी ने कुछ मिला न दिया शराब में,
काफिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर आने का अहद कर गया ये जो ख्वाब में। गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी पीता हूँ रोज़े अब शबे महताब में। कब से क्या बताऊं जहाँ खराब में शब आए हिज्र को भी रखूं हर हिसाब में। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। दिल ही तो है न संग खेल, दिल ही तो है न संग खेल, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संग खेल। देर नहीं
मेरी किस्मत में गम अगर इतने थे, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यार अब कई दिए होते। ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख जीते जिस काफिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस। पर इतना जानते हैं कल हो जाता था कि हम निकले। हजारों
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। Thank you, thank you. जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता अगर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। न होता अगर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता। और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली की ज़मीन पर गालिब खामोश हो गए। और जिस घर में उन्होंने जीवन के आखिरी पल जिए, वो आज यादों का बुतखाना बन चुका है, जहां गालिब की रूह अब भी अपनी शायरी में सांस लेती है। थैंक यू।
As we bring this musical journey on Mirza Ghalib to a close, we do so with hearts full of gratitude and minds enriched. Through every verse and melody, we discovered not just a poet, but a profound thinker who continues to speak to our souls across centuries. This evening was not merely a performance, it was a shared experience of reflection, emotion, and beauty. Thank you to every participant and listener for making this tribute so meaningful. It was such a pleasure to have you all with us today. Thank you very much to this wonderful audience. I really appreciate your presence. I'm truly overwhelmed with the response and support from all of you. I sincerely thank you all from the core of my heart. You all have been a wonderful and very patient audience. Thank you, Viplavji, for all your help and support on tracks, besides your incredible singing. Colonel Yadav is not here, but yes, thank you, Colonel Yadav, for having trust on us again and giving us the stage yet again. I wholeheartedly thank you, Mr. Mathur, for your help, support, and guidance. Just a token of love and respect to you, if you could just please come up again once. It is really a pleasure, and we are definitely indebted to Mr. Mathur for making this wonderful evening happen. और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you once again. And I thank our musicians Chetan and Dilip for creating the magic through their fingers on the instruments. Thank you, Rajkumar. Thank you for working so hard behind the cameras. Thank you for the back-end team, Nitin especially, for handling the situations and everything so technically well. And last but not the least, thanks to Mrs. Meena Mathur for collaborating with us and giving me the opportunity yet again to facilitate the program with you. I want to thank Mrs. Bindu Puri and Mrs. Sunila Mishra for their help and support. Now I also want to thank the key person behind the program, that is Mr. Arun Puri. Right from the initial concept till the implementation of the program, Mr. Puri has worked very hard to make it happen. I wholeheartedly want to thank you, Mr. Puri, for planning, executing the whole project so Pleasure is all wonderfully. mine. So looking forward to meet you all once again very soon for our next program that will be announced very soon. And thank you again. Wishing you many more wonderful musical moments ahead. In tune, in spirit, enjoy, always Surdhara. और एक आखिरी शेर जाते जाते गालिब साहब का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर लौट के आ भी ना सके. And I want to thank Mr. Puri for recognizing that I sing and getting me a chance and opportunity to do this. And thanks Mr. Mathur and Ms. Meena Mathur for Pleasure is all ours, sir. Thank you very much. And thank you for all the support, all the wonderful people who've come here to listen to this. Thank you.